السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سمنان اور آج سے ہم 9th کلاس کا سیشن شروع کر رہے ہیں۔ نیو سلیبس ہے، یہ فزکس پڑھائی جائے گی آپ کو یہاں پہ، اور جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے 9th کلاس کا اس کا نام ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس۔ لیکن فزیکل کوانٹیٹیز اور میجرمنٹس کو پڑھنے سے پہلے 9th کلاس کے سلیبس کے اندر جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائنس کی، کیونکہ جو ہماری فزکس ہے وہ سائنس کی ہی ایک برانچ ہے۔ تو سائنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ اب سائنس کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اب ہم نے پرانی بکس کے اندر یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو سائنس ہے وہ ایک ایسا نالج ہے جو آبزرویشنس اور ایکسپیریمنٹس کے رزلٹ کے طور پہ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ آبزرویشنس اور ایکسپیریمنٹس کس طریقے سے سائنس کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، یا یہ سائنس ہے کیا، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سائنس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اصل میں ہے کیا۔ سائنس ایک ایسا نالج ہے جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب آبزرویشن کے لیے ہم اپنی 5 طرح کی جو سینسز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنے کی حصہ ہے، ہمارے پاس دیکھنے کی سینس ہے۔ اس کے بعد ہماری سننے کی حصہ ہے جو ہم اپنے کانوں کو یوز کرتے ہوئے استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد سونگھنے کی حصہ ہے جو ہم ناک کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ چکھنے کی حصہ ہے زبان کے ذریعے سے، اور بولنے کی حصہ ہے جو ہم اپنی زبان کے ذریعے سے پرفارم کرتے ہیں۔ تو ان سب آبزرویشنس کے لیے ہم ان اپنی سینسز کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپیریمنٹس ہیں جن کو ہم خود پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے جب سے اس دنیا میں وہ آیا ہے اسی وقت سے وہ اس کے اندر کیوریسٹی تھی، وہ چیزوں کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا، ان چیزوں کے بارے میں ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا تھا، وہ ان چیزوں کے بارے میں متجسس تھا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا اسی وقت سے اس نے چیزوں کو جاننا شروع کر دیا۔ اب ایک وقت تھا جب انسان غاروں کے اندر رہا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ اسی وقت سے اس نے اپنی جو نالج تھی اس کی ابتدا کر دی تھی۔ اب ایک ہمارے پاس مثال ہے چھوٹی سی کہ ایک انسان غار کے اندر رہتا تھا اور ایک دن بڑی زوردار آندھی اور طوفان کا سامنا کرنا پڑا اسے۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گیا، لیکن اس نے باہر دیکھا کہ آسمان سے ایک جو پہاڑ تھا اس پہاڑ سے ایک پتھر نیچے کی طرف گر رہا ہے، اور زمین کے پڑے ہوئے ایک دوسرے پتھر کے ساتھ وہ جو پتھر ہے وہ سٹرائی کرتا ہے، اس کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک چنگاری پیدا ہو گئی، وہاں پہ آگ لگ گئی۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس نے یہ آبزرویشن کی تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جیسے ہی دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری کو ہم آگ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس نے سیکنڈ نمبر پہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے چاہا کہ میں جانوں، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا اس نے۔ تو اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دو آپس میں پتھروں کو لیا اور ان کو آپس میں رب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ دو پتھروں کو وہ رب کر رہا ہے، زور سے کر رہا ہے، لیکن اس کی ربنگ کے نتیجے میں کوئی کسی بھی قسم کی چنگاری پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے سوچا کہ یار یہ ہر دو قسم کے پتھروں کو آپس میں رب کرنے سے چنگاری پیدا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی خاص قسم کے پتھر ہوں۔ تو اسی سوچ کے بعد اس نے وہ پتھر جو اوپر سے پہاڑ سے نیچے گرا تھا اور وہ پتھر جو زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس خاص قسم کے پتھروں کو لیا، ہاتھ میں پکڑا اور آپس میں رب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے ان کو رب کیا تو ویسے ہی چنگاری پیدا ہو گئی۔ اب اس نے یہ جو ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشن کے نتیجے میں نالج گین کیا تھا، اس کا وہ جو نالج تھا وہ سائنس کا نالج کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ اگر ہم سائنس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس ساری ایگزامپل کے بعد ہم سائنس کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سائنس ایک ایسا نالج ہے جو ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنس کے نتیجے میں حاصل کیا جاتا ہے۔ دا نالج obtained by observations and experiments is called science۔ یہ نالج ہمارے پاس سائنس کا نالج ہے۔ اب جب بھی ہم کسی لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ آیا کہاں سے ہے۔ تو جو سائنس کا ورڈ ہے
وہ लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है, और लैटिन ज़ुबान का जो लफ्ज़ है जिससे ये निकला है वो साइंशिया है। ये साइंशिया से माखूज़ है। अब साइंशिया या साइंटिया, इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब आमतौर पे लिए जाते हैं, एक नॉलेज और दूसरा इसके बारे में टू नो, कि जानना या इल्म। ये दोनों साइंशिया के मतलब है। अब जब इंसान ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर दिया, उसको अपनी किताबों के अंदर लिखना शुरू कर दिया, या जो भी उस वक़्त लिखने के लिए या याद करने के लिए चीज़ें थीं उसके बाद, तो इंसान के पास जो उस वक़्त का नॉलेज था उसको एक ब्रांच का नाम दिया गया, उसको नेचुरल फ़िलॉसफी का नाम दिया गया। कि उस वक़्त पत्थर के ज़माने में जब इंसान इस दुनिया के एक्सप्लोर कर रहा था, इस दुनिया के ऊपर मौजूद चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो उस वक़्त जो साइंस का नॉलेज था उसको जिस बुक के अंदर पढ़ा जाता था या जिस चीज़ के अंदर पढ़ा जाता था उसको कहा जाता था नेचुरल फ़िलॉसफी। अब नेचुरल फ़िलॉसफी ये इनिशियली साइंस का नाम था, लेकिन ये जो नेचुरल फ़िलॉसफी है, ये ब्रांच जो थी चीज़ों को एक्सप्लोर करके हासिल करदा नॉलेज की, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बढ़ते गए, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बढ़ती गई, इंसान की जो लगन थी वो बढ़ती गई। उसने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो उसने जब चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसका जो नॉलेज था वो इंक्रीज़ होता गया, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जब नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस वक़्त के जो साइंटिस्ट थे, जो नेचुरल फ़िलॉसफर्स थे, उन्होंने उस वक़्त की जो साइंस थी उसको दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया गया फिज़िकल साइंसेस का और दूसरी को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस का। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पहले हम बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे। नाम का बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ। तो बायोलॉजिकल साइंसेस साइंस की या नेचुरल फ़िलॉसफी की वो ब्रांच थी जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। वो आपके पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस। जितनी भी उस वक़्त इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा चीज़ें थीं, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, चींटियाँ हो गई, कीड़े मकोड़े, मतलब कि हर किस्म की चीज़, उसका जो सारे का सारा नॉलेज था वो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर पढ़ा जाता था। हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल साइंसेस नहीं है, हमने फिज़िक्स तक आना है, तो इसके लिए हम फिज़िकल साइंसेस की बात करते हैं। तो जितनी भी जिंदा चीज़ें थी उनको हम बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर पढ़ते थे। तो इसका जो अपोजिट है नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी, यानी जितनी भी बेजान थिंग्स थी, बेजान चीज़ें थी, उन सारे की सारी जो चीज़ें थी उनका इल्म हमने जिस बुक के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको नाम दिया गया फिज़िकल साइंसेस का। तो फिज़िकल साइंसेस साइंस की या नेचुरल फ़िलॉसफी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम तमाम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जो फिज़िकल साइंसेस थी जिसके अंदर हम चाँद के बारे में पढ़ते थे, सूरज के बारे में पढ़ते थे, निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ते थे, इस ज़मीन के बारे में पढ़ते थे, इसके क्रस्ट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, या हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स थी उनके बारे में पढ़ते थे, वो जो नॉलेज था वो भी इंक्रीज़ करता गया, बढ़ता गया। इतना बढ़ गया कि वो जो नॉलेज था वो फिज़िकल साइंसेस की एक ब्रांच के अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो उस वक़्त के लोगों ने क्या किया, जो फिज़िकल साइंसेस थी इसको फिर मज़ीद आगे 5 डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो 5 डिसिप्लिन्स क्या थे? वो जो 5 डिसिप्लिन्स थे फिज़िकल साइंसेस के, वो हमारे पास हैं फिज़िक्स। उन 5 डिसिप्लिन्स में सबसे पहले नंबर पे आपके पास फिज़िक्स आती है। फिज़िक्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री उन 5 डिसिप्लिन्स में वो ब्रांच है फिज़िकल साइंसेस की जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे वाटर आपके पास, इसका केमिकल फार्मूला H2O, सब लोगों को इसके बारे में पता है।
H2O इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे बनता है, इसकी ये खसूसियात क्या क्या हैं, ये सारे के सारी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे अराउंड जितने भी केमिकल्स हैं उन सारे के सारा जो नॉलेज है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास आती है मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच थी, फिजिकल साइंसेस की वो ब्रांच थी या वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। मेटीरियोलॉजी के अंदर जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लाइमेट का है, हमारे एटमॉस्फेयर का है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, या हम बेसिकली इसको मौसमियात भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है वह जियोलॉजी। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ज़मीन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जियोलॉजी का मतलब होगा अर्थ के बारे में स्टडी करना, अर्थ के क्रस्ट के बारे में, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। उन सारे की सारी जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज जियोलॉजी के अंदर गेन किया जाएगा, जियोलॉजी के अंदर उसको पढ़ा जाएगा। और आखिरी नंबर पे जो इसका डिसिप्लिन है वो हमारे पास है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प मजमून है वो एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर हम आसमान के बारे में पढ़ते हैं, इस कायनात को एक्सप्लोर करते हैं कि इस कायनात में इस ज़मीन से बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, या इसके अलावा जितने भी आसमान के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं उनका जो नॉलेज है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर गेन किया जाता है। अब ये था हमारे पास फिज़िकल साइंसेस के बारे में। अब जो हमारी बेसिक बुक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है फिज़िक्स, उसकी बात करते हैं कि ये फिज़िक्स क्या है। अगर हम देखें फिज़िक्स के बारे में तो फिज़िक्स और फिज़िकल साइंसेस दोनों तकरीबन जो स्पेलिंग है, जो नाम है इसका, वो एक जैसा है। फिज़िक्स की अगर हम डेफिनेशन करें, डेफिनेशन के बाद उसको हम तफसील के साथ बयान करेंगे। फिज़िक्स हमारे पास है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy, and their interaction or relationship। यानी कि फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को, और इनके आपस में इंटरेक्शन को या रिलेशनशिप को। ये चार काम हम करते हैं फिज़िक्स के अंदर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर का, कि मैटर क्या है। मैटर हमारे अराउंड हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं वो मैटर कहलाता है। अगर साइंस की ज़ुबान में मैटर की डिफ़ाइन की जाए तो मैटर आपके पास हर वो चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं, जो स्पेस रखती है, जो जगह घेरती है, वो मैटर कहलाता है। मैटर के अंदर बेसिकली इसकी जो तीन टाइप्स हैं, जैसे आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से जो मैटर की फोर्थ स्टेट है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, वो भी एक किस्म का मैटर ही है। तो फिज़िक्स के अंदर आपने इन चार स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड के बारे में, फॉर एग्जांपल चेयर आपकी सॉलिड है, आप इंसान सॉलिड है, मोबाइल फ़ोन आपका सॉलिड है। लिक्विड के बारे में पढ़ना है, वो पानी जिसको हम पीते हैं लिक्विड है, जो शरबत हम पीते हैं, जो चाय हम पीते हैं वो लिक्विड है। गैस के बारे में पढ़ना है, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं वो गैस है। इसी तरीके से प्लाज्मा। अब बहुत से जो कायनात के अंदर
जो सियारे हैं उनका जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर प्लाज्मा को इस ज़मीन के ऊपर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक एनर्जी सेवर बल्ब है। उस एनर्जी सेवर बल्ब के अंदर एक गैस को भरा जाता है। जैसे ही उसमें से करंट पास होता है तो उसमें से लाइट निकलती है। वो जो गैस होती है उसके अंदर जैसे उसमें से करंट पास होता है तो वो जो गैस कन्वर्ट हो जाती है जिस स्टेट के अंदर, वो आपके पास प्लाज्मा ही है। तो बेसिकली मैटर हमारे पास हो गया हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो स्पेस रखती है, जो जगह घेरती है, वो मैटर कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे हम एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी क्या है? मैटर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में उसको हम एनर्जी कह लेंगे। जैसे जिनको हम छू नहीं सकते, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट है, लाइट एनर्जी है, लाइट को हम छू नहीं सकते। हीट एनर्जी है, महसूस किया जा सकता है हीट को, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। इसी तरीके से साउंड है, हम बोलते हैं, मेरी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ आपके दोस्तों तक, और एक दूसरे से हम बात करने के लिए साउंड को यूज़ करते हैं, बट साउंड एक एनर्जी है, इसको हम देख नहीं सकते। तो ये हमारे पास एनर्जी है। अब इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ना है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पढ़ना है कि मैटर का और एनर्जी का, सॉलिड का और लाइट का, लिक्विड का और लाइट का, इनका आपस में रिलेशन क्या है। अब इसके रिलेशन को डिस्कस करने के लिए हम मिसाल लेते हैं एक पंखे की। पंखा आपके पास जो फैन है, सीलिंग फैन, वो सीलिंग फैन आपका सॉलिड है, सीलिंग फैन हमारा सॉलिड है, बट उसमें से जो पास आउट होने वाला करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे पास एनर्जी है। तो उस मैटर यानी फैन और एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के इंटरेक्शन के नतीजे में क्या हुआ? इंटरेक्शन के नतीजे में वो पंखा आपको हवा देता है, जिसकी वजह से आप सुकून के साथ गर्मियों के मौसम के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन आ गया कि कैसे मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है, या इंटरेक्ट करके आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये इनका इंटरेक्शन है। अगर कोई और एग्जांपल लें हम, तो हमारे पास मोटर बाइक है, ऑटोमोबाइल्स हैं। उस मोटर बाइक के अंदर जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल हमारी एनर्जी है। जो मोटर बाइक है उसका इंजन है, उसके व्हील्स हैं, या जो उसकी बॉडी है, वो आपके पास मैटर है। जब पेट्रोल इंजन के अंदर जलता है, उसके जलने से एनर्जी पैदा होती है। वो जो एनर्जी है, ये इन और मैटर, इनका जैसे ही आपस में इंटरेक्शन होता है, इनके इंटरेक्शन के नतीजे में जो इंजन है आपका, वो आपकी बाइक को आगे की तरफ धकेलता है, आपकी गाड़ी को आगे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हैं कुछ ही लम्हात के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली फिजिक्स है। यानी कि फिजिक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस सिमत भी देखेंगे, हमें कोई ना कोई फिजिक्स वहाँ पे मिलेगी। छत की जानब देखेंगे पंखा लगा हुआ है, फिजिक्स मिलेगी। दीवार की जानब देखेंगे बल्ब लगा हुआ है, फिजिक्स मिलेगी। सामने देखेंगे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वहाँ पे भी हमारे पास फिजिक्स है। ये जिस मोबाइल के ज़रिए से वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो भी फिजिक्स की वजह से ही है। घरों में पानी को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर को यूज़ किया जाता है, वो भी फिजिक्स की ही एक ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी फिजिक्स है, ये हर चीज़ के अंदर फिजिक्स है। हमारे पास जो पेंसिल है जिससे हम लिखते हैं, वो भी फिजिक्स है। यानी कि फिजिक्स हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि फिजिक्स की जो एग्जाम्पल है वो आप अपने अराउंड हर चीज़ से देख सकते हैं। तो इन सब के बाद आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स की हमारी लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये तो 9th क्लास का न्यू सिलेबस का पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर तफसील के साथ। उससे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। क्वांटिटीज़ हमारे पास मिक़दारें हैं, हमारे अराउंड जितने भी किस्म की मिक़दारें हैं, जैसे लव, विज़डम, नॉलेज, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे की सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। क्वांटिटीज़ को बेसिकली दो अक़साम के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है?
اور جو نان فزیکل کوانٹٹیز ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے. تو بیسیکلی فزیکل کوانٹٹیز ان کوانٹٹیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پیمائش کر کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ فزیکل کوانٹٹیز ہیں. تو فزیکل کوانٹٹیز کی ڈیفینیشن ہوگی آل دی میئریبل کوانٹٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹٹیز. آل میئریبل کوانٹٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹٹیز. یا اس کی ہم ایک اور ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کوانٹٹیز جن کو کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کیا جا سکتا ہے اس کو ہم فزیکل کوانٹٹیز کہتے ہیں. تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو اس کی ڈیفینیشن بنے گی وہ کچھ اس قسم کی ہوگی آل دی کوانٹٹیز which can be measured by using any measuring instrument are called physical کوانٹٹیز. یعنی کہ ہمارے پاس وہ سارے کی ساری کوانٹٹیز جن کو ہم کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کا یوز کرتے ہوئے میئر کر سکتے ہیں فزیکل کوانٹٹیز کہلاتی ہیں. فزیکل کوانٹٹیز کی اگر ہم اگزامپل کے بارے میں بات کریں، جیسے ہمارے پاس لینتھ ہے، لینتھ کو ہم میٹر رول، ورنیئر کیلیپر، سکریو گیج یا میئرنگ ٹیپ ان میں سے کسی بھی انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے میئر کر سکتے ہیں. تو لینتھ ایک فزیکل کوانٹٹی ہے. سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں ماس کو، تو ماس، ویٹ یہ دونوں بھی فزیکل کوانٹٹیز ہیں. ان کو ہم فزیکل بیلنس، سپرنگ بیلنس یا بیم بیلنس ان میں سے کسی بھی بیلنس کو یوز کرتے ہوئے میئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی تیسری ایگزامپل ہم دیکھیں، ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے. ٹیمپریچر تھرمامیٹر کو یوز کرتے ہوئے میئر کیا جا سکتا ہے. تو جو ٹیمپریچر آپ کے پاس ہے وہ بھی فزیکل کوانٹٹی ہے. تو اگر خلاصہ اس کا دیکھا جائے تو فزیکل کوانٹٹیز وہ کوانٹٹیز ہوتی ہیں جن کو کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کا یوز کرتے ہوئے میئر کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں نان فزیکل کوانٹٹیز. تو جتنی بھی کوانٹٹیز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے وہ نان فزیکل کوانٹٹیز کہلاتی ہیں. تو نان فزیکل کوانٹٹیز کی ڈیفینیشن ہوگی آل دا کوانٹٹیز وچ کین ناٹ بی میئرڈ، آل دا کوانٹٹیز which cannot be measured by using any measuring instrument are called non-physical کوانٹٹیز. ایسی کوانٹٹیز جن کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں ہے، ہم بغیر کسی بھی انسٹرومنٹ کی مدد سے ہم ان کو میئر نہیں کر سکتے، ان کو ہم کہتے ہیں نان فزیکل کوانٹٹیز. نان فزیکل کوانٹٹیز کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گی ایگزامپلز میں لو نان فزیکل کوانٹٹی ہے، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. فیئر، ڈر نان فزیکل کوانٹٹی ہے، اس کو بھی ہم کسی بھی انسٹرومنٹ کا یوز کرتے ہوئے میئر نہیں کر سکتے. وزڈم، کوئی شخص کتنا زیادہ ذہین ہے، کوئی شخص کتنا زیادہ عقل مند ہے، اس کو بھی ہم کسی بھی انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر نہیں کر سکتے. نالج، کسی بندے کے پاس کتنا زیادہ نالج ہے، کوئی بندہ کتنا زیادہ ذہین ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے. تو نان فزیکل کوانٹٹیز وہ کوانٹٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے، یہ نان میئریبل ہوتی ہیں. اب جو نان فزیکل کوانٹٹیز ہوتی ہیں
ان کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے یہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر منحصر ہے کہ اس کو کس طریقے سے میئر کرتا ہے. اس کے لیے کوالٹیٹیو انالیسز کیا جاتا ہے, ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ کمپیریزن کر کے. جیسے نالج, یہ کمپیریزن کے نتیجے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا اس بندے سے زیادہ نالج رکھنے والا ہے, لیکن کتنا زیادہ نالج ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. تو یہ ساری کی ساری کوانٹٹیز کہلاتی ہیں نان فزیکل کوانٹٹیز. اب جو ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹیز ہیں, ان فزیکل کوانٹٹیز کو مزید آگے دو اقسام کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, دو برانچز میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ہماری جو فزیکل کوانٹٹیز ہیں, ان فزیکل کوانٹٹیز کو آگے مزید دو برانچز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بیس کوانٹٹیز, سیکنڈ نمبر پہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز. اب بیس کوانٹٹیز کیا ہوتی ہیں اور ڈیرائیو کوانٹٹیز کیا ہوتی ہیں, شارٹ سوال میں بھی آ سکتا ہے یہ. سب سے پہلے بات کریں گے بیس کوانٹٹیز کی. ہمارے پاس جب بھی کوئی جیسے مکان ہے, اس مکان, اس گھر یا کوئی اسکول ہے, اس کی بنیاد میں کچھ 4 سے 5 چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک ہوتی ہیں, جیسے اینٹ, پتھر, سیمنٹ, بجری, سریا, ریت. یہ 6 چیزیں یہ بیسک ہیں. انہی 6 چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم چاہیں تو اسکول بنوا لیں, چاہے گھر بنا لیں, چاہے مسجد بنا دیں, چاہے کوئی قلعہ بنا دیں, چاہے کوئی محل بنا دیں. یہ ہماری اپنی مرضی ہے. تو یہ بیس ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی. اسی طریقے سے جو سائنس کی بیس ہے, اس کی بیس کے اندر ٹوٹل 7 کوانٹٹیز ہیں جن کو بیس کوانٹٹیز مانا جاتا ہے. 7. ان 7 کوانٹٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیس کوانٹٹیز ہیں. ان 7 کوانٹٹیز کو بیس مان کے باقی جو کوانٹٹیز ہیں ان کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. تو بیس کوانٹٹیز کی ڈیفینیشن ہمارے پاس بنے گی, all the quantities on the basis of which other quantities are described are called base quantities. The quantities on the basis of which other quantities are derived are called base quantities. بیس کوانٹٹیز کی اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل 7 بیس کوانٹٹیز ہیں. ان 7 بیس کوانٹٹیز میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ لینتھ بیس کوانٹٹی ہے, ماس بیس کوانٹٹی ہے, ٹائم بیس کوانٹٹی ہے, الیکٹرک کرنٹ بیس کوانٹٹی ہے, ٹیمپریچر بیس کوانٹٹی ہے, انٹینسٹی آف لائٹ بیس کوانٹٹی ہے, اماؤنٹ آف سبسٹانس بیس کوانٹٹی ہے. تو یہ ٹوٹل 7 بیس کوانٹٹیز ہیں. ان کو بیس بنا کے جو دوسری کوانٹٹیز ہیں ان کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس کوانٹٹیز ہیں فزیکل کوانٹٹیز, ان کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں. اب ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز وہ سارے کی ساری کوانٹٹیز ہیں جو کہ بیس کوانٹٹیز سے نکلی ہیں, جیسے اسپیڈ ڈرائیو کوانٹٹی ہے, والیوم ڈیرائیو کوانٹٹی ہے. تو ڈیرائیو کوانٹٹیز وہ کوانٹٹیز ہوتی ہیں جو بیس کوانٹٹیز سے ڈیرائیو کی جاتی ہیں. آل دی کوانٹٹیز which can be the quantities which are derived from base quantities are called derived quantities. وہ کوانٹٹیز جو ڈیرائیو کوانٹٹیز سے اخذ کی جاتی ہیں, ماخوذ کی جاتی ہیں, ڈیرائیو کی جاتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیرائیو کوانٹٹیز ہیں.
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पीड है, डिराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, डिराइव क्वांटिटी है, इसी तरीके से वेलोसिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सारे की सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। अब इनको डिराइव करने के हमारे पास दो असूल होते हैं। हम या तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं, या फिर हम उसको डिवाइड करके डिराइव कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास वॉल्यूम है, अब अगर वॉल्यूम का फार्मूला हम देखें तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब जो लेंथ है ये बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम हासिल करते हैं, जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है। सेकंड नंबर पे हम डिवाइड करके भी डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड करने से हासिल हुई है। यहाँ पे टाइम तो एक बेस क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, और लेंथ बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करने से जो हमारे पास क्वांटिटी हासिल होती है वो डिराइव क्वांटिटी होती है। तो डिराइव क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला, या हम उसको मल्टीप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। सेकंड, हम उसको डिवाइड करके डिराइव कर सकते हैं। एक 2 नंबर का शॉर्ट सवाल हमारे पास रह गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक 2 नंबर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड नंबर पे उसका यूनिट जिसके अंदर उसको मापा जाता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको उसका मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट जिसके अंदर उसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है लेंथ। हम ये कहते हैं कि एक बंदे की हाइट 5.7 फीट है। अब इसमें जो 5.7 है ये मैग्नीट्यूड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो फीट है ये यूनिट है उसको मेजर करने का। घर वाले आपसे कहते हैं कि जाएं बाज़ार से और आप 5 किलोग्राम शुगर ख़रीद कर लाएं। अब जो इसमें 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है शुगर का जो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और किलोग्राम उसका यूनिट है। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाते हुए हम बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी है या फिर नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। पहले नंबर पे उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेकंड नंबर पे उसका यूनिट।